Hello students, welcome to Aurum classes. In this video, I am going to start chapter Our Environments in Text Solutions. So students, in this portion what we will do, I will try to explain all the concepts because the chapter is conceptual and theoretical, means you have to learn answers and you have to understand the concept. So before starting in text solutions, I will request you all students, if you are new to channel, then please subscribe the channel, and if you find these question answers helpful, then it's a request, and please share with your friends also. So students, first question is, why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? So at first we will understand what is biodegradable, what is non-biodegradable. I hope at this is standard class and it is clear to you that biodegradable are the substances which is related to directly or indirectly to living things. Non-biodegradable substances are the substances which are man-made substances, and these are not related to living things directly, and these are the substances which are very hard to adjust in environment. Why it's so? We will find the explanation in this answer. So students, when you will write the explanation, you will write in this way: microorganisms in our environment secrete enzymes to digest substances. तो ये हमको मालूम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल डिकम्पोजर्स, जो कि डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम्स दे डाइजेस्ट द सब्सटेंस, और उसको ही हम कहते हैं कि सब्सटेंस ये डिकम्पोज हो गया. बट if these enzymes are not able to digest some substances like non biodegradable, तो फिर वो कैसे रहेंगे? वो environment में ही रह जाएंगे substances, right? So microorganism in our environment secrete enzymes to digest substances. These enzymes degrade organic waste such as dead remains of plants, animals and their waste. This waste is called biodegradable waste. हमारा जितना कुकिंग का वेस्ट है यूजुअली जो ईडेबल है, जो हम खा सकते हैं, ऑल आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बट दीज एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड सर्टेन सब्सटेंसेज सच एज प्लास्टिक, ग्लास, तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. नाउ इन द इन्वायरमेंट, other than decomposers, there is no other microorganism and any kind of living beings which can डिग्रेड दीज सब्सटेंसेज विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो क्या होगा जब ये स्मॉल पीसेज में मॉलिकुलर लेवल पे जब ये ब्लेंड नहीं होंगे नेचर में, तो दे विल एज सच दे विल रीच टू आवर सिस्टम एंड इट विल बी हार्मफुल, क्योंकि हमारी बॉडी भी इनको डाइजेस्ट करने में क्या होती है, कैपेबल नहीं होती है. सो दिस इज़ द रीज़न दीज आर हार्मफुल. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ, एक्चुअली अब आपको तो यही आंसर लिखना है इतना, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर वाई दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज मॉलिकुलर साइज ऑफ सब्सटेंसेज आर सो लार्ज एक्चुअली दैट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो फिट नहीं होते हैं इसके डाइजेशन के लिए. सो दिस इज द आंसर. Now second question, student, give any two ways in which biodegradable substances would affect the environment. So biodegradable substances will affect environment by many ways, but we have to write only two ways. So we are writing here means I have taken 2 points जिसमें कि एक हम advantage एक disadvantage लिखेंगे, because in the question they are not asking कि advantage लिखना है या हमको disadvantage लिखना है. So एक point लिख लेंगे दोनों का. फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर हम हीप ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अगर ऐसे ही आप अपना जो किचन वेस्ट होता है, अगर आप ऐसे ही ओपन में उसको रखते हैं, तो डेफिनेटली उसमें जर्म्स एंड जो बैक्टीरियाज उसमें ग्रो करते हैं, एंड दीज कैन क्रिएट हार्म टू आवर हेल्थ इन द फॉर्म ऑफ, जैसे डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, तो ये सब डिजीज़ हमको हो सकती हैं इफ़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ केप्ट ओपन. तो इसको हमको कवर करके रखना चाहिए, और जो भी असाइंड प्लेस है वहाँ पे इसको डंप करना चाहिए. मींस देर आर मींस यूनिट्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, कंपोस्ट प्रोडक्शन, मैन्योर प्रोडक्शन, तो वहाँ पे हम दे सकते हैं. या जो हमारे घर में आते हैं ये कचरा कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें हम वी हैव टू कीप किचन वेस्ट, मींस जो ग्रीन हमारा
वेस्ट होता है, एंड अदर वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड, हमको सेपरेट रखना चाहिए. देयर आर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो सेपरेट रखना चाहिए. तो ये जो वेस्ट होता है हमारा ग्रीन वेस्ट, तो ये जो हमारे स्वीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये प्लांट्स में ले जाते हैं जहाँ पे ये कंपोस्ट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है. ठीक है. तो फॉर द टाइम बीइंग मीन जितना भी देर के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ एट अवर होम, तो वहाँ भी हमको उसको प्रॉपरली ढक के रखना चाहिए. अब जो सेकंड है, सेकंड वी कैन राइट एडवांटेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो हम लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल. तो ये बायोडिग्रेड होता है अगर हम प्रॉपरली इसका कंपोस्ट बनाते हैं. देयर आर आपके बैक्टीरियाज होते हैं, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, एंड वी कैन फॉर्म कंपोस्ट. different types of waste provide nitrogen, carbon in the form of and other nutrients also. जैसे banana peel है, onion peel है, vegetable peels हैं, brown leaves in the garden. So different types of biodegradable waste provide different nutritions to soil. So in that way it is beneficial. Third question. Give any two ways in which non-biodegradable substance would affect the environment. So in this question they are asking about non-biodegradable waste. तो इसमें हमको disadvantages ही लिखने हैं, because usually it means it create negative impacts on environment by all means. So non-biodegradable waste like pesticides, heavy metals, plastics हैं, glasses हैं, enters the food chain and biomagnifies it. तो जितने भी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम ट्रॉपिक लेवल पे या फूड चेन में जब हम आप ऊपर की तरफ, जब हम टॉप कंज्यूमर्स की तरफ जाते हैं, तो जो हमारे जितने भी हार्मफुल केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस हैं उनका बायो मैग्निफिकेशन होता है. मैग्निफिकेशन मतलब वो शॉर्ट अमाउंट से लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट पे टॉप कंज्यूमर्स पे पहुँचते हैं. इट अफेक्ट्स ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ह्यूमस. तो अब क्या होगा फिर, जो ये आपके जितने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच इज़ हार्मफुल ऑल केमिकल्स विच एंटर्स द फूड चेन, और जितने भी कंज्यूमर्स का जो हमारा वेस्ट होगा, मींस उनके डेड रिमेन्स हैं या उनके जो यूरिन है या उनका अदर वेस्ट है, वो फिर से कहाँ आता है, वो फिर से इन्वायरमेंट में आता है. मींस वो ह्यूमस वो आपके इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है. तो वो क्या करेगा, इट विल अफेक्ट ऑल द बायोटिक, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन सबको अफेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. वो हमको भी अफेक्ट करते हैं, अदर एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगा. एक्सेसिव यूज़ ऑफ सच सब्सटेंसेज अफेक्ट सॉइल की फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है, एंड क्रॉप को रिड्यूस करता है, जो क्रॉप की यील्ड है उसको रिड्यूस करेगा. सो दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज इन एनवायरनमेंट. Now the next question is, what are tropic labels? Give an example of a food chain and state the different tropic labels in it. So student, tropic label is a distinct, means different sequential step in a food chain where transfer of energy occurs, are referred to as different tropic labels. So this is the tropic label where you can see distinct sequential steps, means steps are in sequence. The first step is producer, then primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Producers are green plants, autotrophs, first tropic label, and this is second tropic label where primary consumers mean herbivores are there. Carnivores, third tropic label, secondary consumer, and then tertiary consumer are also carnivores. So this is the structure of tropic label, and this way you can label it. Now the next part of the question is, give an example of food chain and state the different tropic labels. So at first you will write example of food chain. Here we are taking this food chain where producer is grass, rabbit is primary consumer, secondary consumer is wild cat, tiger is tertiary consumer. So for tropic label presentation, what you will do, simply you will make a tropic label and you will mark all the producer and consumer you have mentioned in food chain. So means properly same way as we have already labeled here, you will label a food chain you are giving in the example. So usi ke according you will label producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. In this case, in the first
trophic label, you will label grass, and then in second primary consumer rabbit, and then third secondary consumer wildcat, and then fourth tertiary consumer tiger. In this way you will label the trophic label. The next question is, what is the role of decomposers in ecosystem? So in the previous question, we have discussed role of decomposers as they decompose biodegradable waste in the ecosystem. Other than that, means that way they also provide space for new life. So the answer you will write in 3 points. Decomposers decompose dead remains of plants and animals and their waste organic products into simpler inorganic substances. So what decomposers are doing? Decomposers are converting organic products into simpler inorganic products, जिसको कि soil में producers easily consume करते हैं, and they get nutrients by these inorganic substances which are decomposed by decomposers from organic products. So the second point is decomposed organic waste is used by producers, same we have discussed it. And the last is decomposers by decomposing waste provide a space for new life. So what decomposers are doing, they are converting organic products into simple inorganic substances जिनको producer use कर देते हैं और एक पूरा means new life के लिए space provide करते हैं ये. Now the next question is, what is ozone and how does it affect any ecosystem? So ozone is a highly reactive gas composed of 3 oxygen atoms. It is present in Earth's uppermost atmosphere. We call it stratosphere. In stratosphere, oxygen is dissociated in the presence of ultraviolet radiation. में दोनों cases होते हैं students. Ozone layer dissociate होके ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन भी देता है, विच इज़ अ वेरी रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. तो नेसेंट ऑक्सीजन फिर से यू कैन सी द फॉरवर्ड एरो एंड बैकवर्ड एरो बोथ. तो O3 डिकम्पोज होके O2 एंड O नेसेंट ऑक्सीजन बना रहा है, एंड देन अगेन बोथ आर कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग ओजोन. तो ये एक बैलेंसिंग रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में, जिस बिकॉज ऑफ दिस बैलेंसिंग एक हमको प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड होती है अर्थ को फ्रॉम द यूवी हार्मफुल यूवी रेडिएशन. So photo dissociation of ozone and its generation, both देख रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम है क्योंकि photo dissociation of ozone and its generation dissipates the energy of UV radiation as heat. तो सन की जो जितने रेडिएशंस हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उन रेडिएशन की एनर्जी को ये लोग ये यूज़ करते हैं. ओजोन फोटो डिसोशिएशन में भी वाई वी आर कॉलिंग इट फोटो डिसोशिएशन बिकॉज ओजोन इज डिसोशिएटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनको हम क्योंकि फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, इससे ही एनर्जी मिल रही है इसको डिसोशिएट होने के लिए. सो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम. ओजोन कैसे अफेक्ट करता है? तो इफेक्ट्स ऑफ ओजोन ऑन एन इकोसिस्टम इज ओजोन लेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर. Ozone layer in the stratosphere acts as a protective shield from the harmful effects of UV radiation. Depletion of ये तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमको. ओजोन लेयर क्या करता है? ये यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लाइफ को. डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, अगर डिप्लेट होगा ओजोन लेयर मतलब ओजोन लेयर में कोई प्रॉब्लम या डैमेज होने लगेगा तो इट अलाउज मोर यूवी रेडिएशन टू पास थ्रू इट. तो बहुत सारे यूवी रेडिएशन अर्थ के अंदर आने लगेंगे जो कि हार्मफुल होते हैं, विच देन स्ट्राइक्स द अर्थ एंड कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट्स. कैसे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे? इट कैन कॉज कैंसर, आईसाइट प्रॉब्लम, डैमेज टू इम्यून सिस्टम एंड 10 to 20% डिक्लाइन इन फोटोसिंथेसिस. सी हाउ हार्मफुल दिस डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. अगर फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होता है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. डिक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज CO2 बिकॉज फोटोसिंथेसिस से हमको ऑक्सीजन मिलता है. प्लांट के रेस्पिरेशन से प्लांट CO2 देता है. तो CO2 इज़ देयर, बट जो ऑक्सीजन चाहिए हमको मीन्स रेस्पिरेशन के लिए वो फोटोसिंथेसिस से प्रोवाइड करता है. और अगर फोटोसिंथेसिस में डिक्लाइन होगा तो ऑक्सीजन के लेवल में भी डिक्लाइन होगा.
तो वी ऑल्सो वट वी आर डूइंग, वी आर ओनली इनहेलिंग ऑक्सीजन जितना है, और वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ना, वी आर एक्सहेलिंग इट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो हीट को ट्रैप करता है। तो CO2 भी एक हमको ऐसा लेबल प्रोवाइड करता है, एक ऐसा ब्लैंकेट प्रोवाइड करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, जो कि हीट को ट्रैप करके रखता है और एकदम टेम्परेचर फॉल नहीं होने देता सनसेट होने के बाद। तो वो जो ट्रैपिंग है वो लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और दैट विल बी हार्मफुल, क्योंकि दिस विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। So the next question is, how can you help in reducing the problem in waste disposal? Give any 2 methods. So this is the answer. Waste disposal means getting rid of waste. तो जितना भी वेस्ट होता है हम भी डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, घर के वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। देयर इज़ ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। जो ग्रीन वेस्ट होता है किचन का, तो उसको हम क्या करते हैं, रोज़ उस क्लीनिंग करते हैं और जो क्लीनिंग करने वाले आते हैं और वो उस वेस्ट को ले जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल मीन्स गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन साइंटिफिकली, लेकिन ऐसे नहीं कि एक ही डस्टबिन में हम सारे टाइप ऑफ वेस्ट को मिक्स कर दें। You should know that there is biodegradable waste and then non-biodegradable waste, and then there is electronic waste. So all the 3 waste should be keep in different bin. तो अगर आपके घर में ऐसे कोई इतना इस तरह से एजुकेटेड नहीं है कि हमको वेस्ट को सेपरेट करना है, देन यू हैव टू एजुकेट देम कि अगर आप मिक्स कर देते हैं सारा कूड़ा तो वो क्या होता है, सारा वेस्ट अगर आप मिक्स करेंगे तो दैट इज़ हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम होती है। सो दिस शुड बी डन साइंटिफिकली। द मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वेस्ट। तो जब हम डिस्पोज करते हैं वेस्ट को, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट नेचर ऑफ द वेस्ट कि कैसा वेस्ट है ये। इफ़ देर इज़ प्लास्टिक, देर इज़ ग्लास, देन वी हैव टू कीप देन इन डिफरेंट बिन। इफ़ देर इज़ किचन वेस्ट, दैट शुड बी इन डिफरेंट बिन. So because in question we are means they are asking only 2 methods, so we are writing only 2 methods. The first method is recycling of waste. तो इस वाले सेक्शन में क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉलिड वेस्ट जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल्स है, विच वी कैन रिसाइकिल कैन बी रिसाइकिल्ड बाय सेंडिंग देम टू रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग यूनिट। तो उनको सेपरेट करना है हमको, इसको हमको सेपरेट रखना है। द अनदर वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन के लिए हाउस होल्ड वेस्ट सच एज दी जो पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, किचन का लेफ्ट ओवर फूड, ये सब होता है, डेड लीव्स ऑफ किचन गार्डन प्लांट्स एक्सेट्रा, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज मैन्योर फॉर प्लांट्स। तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देर आर मैनी वीडियोज हाउ टू फॉर्म कंपोस्ट एंड ऑल, तो वो देख के आप छोटा सा अपने घर में एक कंपोस्ट बिन बना सकते हैं। सो student, these are the in-text solutions. Very soon I will upload exercise solution of the same chapter. Thank you for watching.